In today's session, I warmly welcome you all in new phase of learning where I will disclose what is the power and influence of a consumer in the market. Whether his purchasing power does affect market equilibrium, does he has the guts to change this country's set pattern of pursuing prices? So answer is yes. Today I will unfold it out in front of you. So let's check it out. Chain effects. Market forces are pushed and pulled by the demand and supply factor, and they have influence as shift. And today we will discuss demand curve in this aspect. Dear scholars, we have again assembled, and hereby I warmly welcome you in the class of economics. And we will discuss today's class based on market equilibrium, and I will going to make you a presentation and understanding concept of chain effects, and this chain effects will be representing market influencing forces. Market किन factors से influence होती है और उनका क्या effect है market में अपने role को लेकर, तो that we will discuss today. So today we will discuss market get influenced by demand and supply, and demand and supply के shifts की वजह से, shift की वजह से other than price के reason की वजह से, जो factors affect करते हैं other than price, उसकी वजह से जो influence होती है हम आज वो discuss करेंगे other than price की वजह से. And then that shift means to say either the increase or decrease of market forces. Market forces या तो increase करेंगी या decrease करेंगी. So market force में हम increase और decrease में क्या forces को लेते हैं? That means demand. Market को push and pull करने की दो forces हैं. That is called demand and supply. दो ही तो जने मार्केट बनाते हैं, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स. सो दीज आर टू फोर्सेस विच पुश एंड पुल्स दी मार्केट इक्विलिब्रियम. या तो इसे सेटल करती है या पुश एंड पुल करती है. सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस हाउ डज मार्केट ऑब्जर्व करती है, अपने अंदर सोख लेती है, अपने अंदर पुट ऑन कर लेती है कि इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए तो मार्केट अपने अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस रख लेती है, और वो ऑब्जर्वेशंस जो है, जो चेंजेस हैं, जो इन्फ्लुएंस है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं. टुडे वी विल डिस्कस दैट, एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस होल थिंग. And in short, I have presented on board for you for better understanding. Have a very great look on it because this is very much important concept. So because market observe impact of shift of demand curve. So that it will be part of chain effects of market forces. That will be the impact of chain effects on market forces. So have very broad look of it. Now let's see first shift. डिमांड कर्व का फर्स्ट शिफ्ट कौन सा होगा? इंक्रीज इन डिमांड. सो वी हैव दिस कर्व फॉर इंक्रीज इन डिमांड. लुक, वी हैव अर्लियर दिस पॉइंट एज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड दिस वाज आवर डिमांड कर्व. नाउ इंक्रीज इन डिमांड, सो द डिमांड का इंक्रीज हुआ है तो डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड. So then this is rightward shift. This means that D to D1 is increase in demand. So we have moved up in demand. Now when we were at the previous demand curve, then we have an equilibrium price in front of it, an equilibrium quantity in front of it. Then when shift in demand curve occurs, the intersection point, अब जहाँ पे supply curve के साथ चेंज हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू sx. जब ये दोनों इक्वल होंगे तब आपका E फॉर्म होगा. अब फर्स्ट पॉइंट पे तो फॉर्म हो रहा था जब D ओल्ड था, जब D आपका चेंज नहीं हुआ था. अब नाउ D चेंज्ड, सो नाउ द व्हेन D विल चेंज, D विल मूव टू D1. अब D से हम D1 पे आ जाएंगे तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट विद सप्लाई जो dx इज इक्वल टू sx है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई की लाइन तो सेम है ना, सप्लाई कर्व इज तो सेम.
it is constant. So then E will be rising. E change हो जाएगा, E change हो जाएगा. अब E will move to E2 because equilibrium price will form when intersection of demand and supply will be there. So that have moved to another point. तो अब जहां से E इंटरसेक्ट हुआ हुआ D के साथ जो है सप्लाई को फॉर्म करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगा, दैट विल बी न्यू इक्विलिब्रियम एंड दैट इज E2. You will going to check where D1 will intersect with supply, that will form E2. जहां पर D1 सप्लाई के साथ इंटरसेक्ट करेगा, that will E2 and that will be new equilibrium. और new equilibrium के सामने where you will going to write P price. तो जो न्यू प्राइस होगा, जो उसके सामने वाला प्राइस है, E2 के सामने वाला प्राइस आपका न्यू प्राइस होगा और E2 के सामने वाली न्यू क्वांटिटी होगी. सो अल्टीमेटली आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड. इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. देखो बेटा, प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो राइजिंग, दोनों तरफ से राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड राइज हो गई. अब यहां से E से हम E2 पे चले जाएंगे, चेक E से E2 पे चले जाएंगे बिकॉज न्यू D1 इज इंटरसेक्टिंग एट E2 एट सप्लाई कर्व. अब E2 के पॉइंट पर D1 सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट हो रहा है. नाउ इन्फ्लुएंस, अब इसका कौन सा इन्फ्लुएंस है? इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे इक्विलिब्रियम में और प्राइस क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी. चेक करते हैं कैसे. प्राइस इज फ्रॉम P1 टू P2 एंड क्वांटिटी मूव्स टू Q1 टू Q2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है और फॉरवर्ड शिफ्ट होने की वजह से वो नेक्स्ट पॉइंट पर आकर सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अब जब दोनों प्राइस और क्वांटिटी आगे शिफ्ट कर जाएंगे तो अल्टीमेटली वी विल लीड टू द पॉइंट नंबर 2 ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम एंड विल फॉर्म अ न्यू इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 2. Now scholars, we will move to the decrease in demand. Earlier we were discussing the increase in demand, now we are discussing decrease in demand. This is another shift. एक तरीका होता है कि demand will increase, move forward, otherwise it move backward. So now we will discuss the backward shift. We will discuss backward shift of demand curve, and this backward shift will reflect you that D to D1 will shift backward. हमारा एरो पीछे आ रहा है. लेट्स चेक कि हम पीछे आ गए. हमारी डिमांड फॉल कर रही है, हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, हम रिड्यूस कर रहे हैं उसे. तो अब हमारा डिमांड कर्व पीछे हो रहा है. अब हमारा जब डिमांड कर्व है तो वो सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा, देन इक्विलिब्रियम विल फॉर्म. नाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस विल चेंज. दिस इक्विलिब्रियम प्राइस विल चेंज. हाउ इट विल चेंज? नाउ चेक इट आउट. D1 should be intersecting with supply curve and that is supply decreasing with the E1 to E2. अब हमारा जो डिक्रीज इन डिमांड है वो सप्लाई कर्व पर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बैकवर्ड आ गए. Look, we are coming down. दोनों साइड से डाउन आते हैं. नाउ जब हमारा D1 सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके सामने एक प्राइस लिखा है, दैट इज P2, क्योंकि ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड प्राइस है, क्योंकि हम बैक आ गए ना अब. सो दैट्स वाई जो प्राइस E के आगे लिखा है ओरिजिनल वाला डिमांड कर्व है. ओरिजिनल वाला डिमांड कर्व है, उसके आगे जो प्राइस लिखा है दैट इज प्राइस 1 एंड क्वांटिटी के आगे जो लिखी है क्वांटिटी दैट इज क्वांटिटी 1. जब हम ओरिजिनल से शिफ्ट वाले पर आ जाएंगे देन दैट विल रिफ्लेक्ट सेकंड. हमारा सेकंड फेज है ना ये. देन दैट सेकंड फेज के आगे जो प्राइस लिखा है दैट इज P2 एंड जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज Q2 एंड दिस विल शो आर बैकवर्ड मूवमेंट कि प्राइस भी फॉल कर जाएंगे और क्वांटिटी भी लेस हो जाएगी. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब डिमांड नहीं है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगी और अगर मार्केट में सप्लायर को अपनी सेल करनी है तो प्राइस फॉल कर जाएंगे. देन आपका ये वाला फेज आ जाएगा कि प्राइस फॉल कर रहे हैं
और क्वांटिटी भी लेस डिमांड हो रही है, then this situation will rise and this situation will be said to be decrease in demand and backward shift हो रहा है, demand less हो रही है, तो demand less होने की वजह से decrease in price होगा इक्विलिब्रियम के प्राइस में, फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम, नई क्वांटिटी फॉर्म हो जाएगी ना Q2, that is moving backward and forms a new equilibrium at E2. अब जहां D1 सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, तो that will also get changed. So let's have a zoom look of the board and then we will discuss the next phase with the next phase class. So thank you for visiting. Assembling of physical classes with digital mechanism. Hereby we have been concluding it for the first phase of chain effect and with the promise to see you again soon with the second phase. Thank you for visiting.